Good morning. Rachna Mukesh welcomes you all in Chintan. Today I am going to share with you a very important conversation between customer and technical person. Technical person asked his customer, Sir, how can I help you? Customer said, Well, after much consideration, I have decided to install Love. Can you guide me through the process? Technical person said, Yes, sir, I can help you. Are you ready to proceed? Customer said, Well, I am not very technical, but I think I am ready. What do I do first? Technical person said, The first step is to open your heart. Have you located your heart? Yes. But there are several other programs running now. Is it okay to install Love while they are running? Technical person said, What programs are running, sir? Let's see. I have past hurt, low self-esteem, grudges, and resentment running right now. Technical person said, No problem, sir. Love will gradually erase past hurt from your current operating system. It may remain in your permanent memory, but will no longer disrupt other programs. Love will eventually override low self-esteem with a module of its own called high self-esteem. However, you have to completely turn off grudges and resentment. Those programs prevent Love from being properly installed. Can you turn those off? Customer said, I don't know how to turn them off. Can you tell me how? Technical person said, With pleasure, sir. Go to your start menu and select Forgiveness. Do this as many times as necessary until grudges and resentment have been completely erased. Customer said, Okay, done. Love has started installing itself. Oops, I have an error message already. It says, Error program not run on external components. What should I do? Technical person said, Don't worry, sir. In non-technical terms, it simply means you have to love yourself before you can love others. Pull down self-acceptance. Then click on the following files. Forgive self. Realize your worth and acknowledge your limitations. Customer said, Got it. Hey, my heart is filling up with new files. A smile is playing on my monitor and peace and contentment are copying themselves all over my heart. Is this normal? Yes, sir. That means Love is installed and running. One more thing before we hang up. This Love program is freeware. You are welcome to share it with others. Please pass it along. Have a good day. चिंतन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का मैं रचना मुकेश हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात। एक बार केन्या के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से 1 मीटर ही दूर थे और उनके सभी प्रतिस्पर्धी पीछे थे। अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था। इतने में
कुछ गलतफहमी के कारण वे अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडीज ने जब उनको रुके हुए देखा तो वो समझ गए कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने के कारण वो पहले ही रुक गए हैं। उन्होंने चिल्लाकर अबेल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश नहीं समझने की वजह से वो नहीं हिले। आखिर में इवान ने उन्हें पकड़कर हाथ से अपने अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल फर्स्ट और इवान सेकंड आए। पत्रकारों ने इवान से पूछा, आपको तो मौका मिला था फर्स्ट आने का, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इवान ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएंगे जो एक दूसरे की मदद करेगी, ना कि उनकी भूल से फ़ायदा उठाएगी। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो गोल्ड मेडल आप जीत सकते थे। इवान ने कहा, उस जीतने का क्या अर्थ होता? क्या मेरे पदक को सम्मान मिलता? मेरी माँ ने मुझसे कहा था, संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते हैं। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता? दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फायदा ना उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी माँ ने मुझे दी है। चिंतन जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से,
अपनी गलती जो सुधारे, दूसरों की माफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेद भाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। चिंतन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का मैं रचना मुकेश हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात। एक बुजुर्ग महिला बस में यात्रा कर रही थी। अगले पड़ाव पर एक क्रोधी युवती बस में चढ़ गई और बुजुर्ग महिला के बगल में बैठ गई। उस क्रोधी युवती ने अपने बैग से कई बार बुजुर्ग महिला को चोट पहुंचाई। पास बैठी एक युवती ने जब ये देखा तो उसने बुजुर्ग महिला से पूछा, उसने आपको अपने बैग से मारा तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? इस पर बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसमें असभ्य होने की या इतनी तुच्छ बात पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी यात्रा बहुत छोटी है। मैं अगले पड़ाव पर उतरने जा रही हूँ। वास्तव में उस बुजुर्ग महिला का ये उत्तर सोने के अक्षरों में लिखे जाने के योग्य है। इतनी तुच्छ बात पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत छोटी है और कुछ समय का ही साथ है। हम सबको समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा समय इतना कम है कि इसे बेकार तर्कों, ईर्ष्या, दूसरों को क्षमा न करना, असंतोष, बुरा व्यवहार करना मतलब समय और ऊर्जा की एक हास्यास्पद बर्बादी है। किसी ने आपका दिल तोड़ा, शांत रहिए। क्या किसी ने आपको धोखा दिया, अपमानित किया, धमकाया, तनावग्रस्त नहीं होइए, नज़रअंदाज करिए। क्या किसी मित्र या पड़ोसी ने ऐसा व्यवहार किया जो आपको पसंद नहीं,
शांत रहिए, उसकी ओर ध्यान मत दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हमारी यात्रा की लंबाई कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता ये अगले पड़ाव पर कब पहुंचेगी। आपसी साथ की यात्रा बहुत छोटी है, न जाने कब बिछड़ना पड़ जाए। कल जिन्हें याद करके आंखों में आंसू आ जाए, क्यों ना उन्हें आज जीते जी अपना लें। चिंतन ज़रूर करिएगा। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। क्यों बैर पाले किसी से भी हम, जीवन का आनंद है बैर बिना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। होती है भूल सबसे मगर, भूलों को क्यों याद रखे सदा। भूले मगर सिर्फ भूलों को हम, इंसान से क्यों रहे हम खफा। माफ करने में मिलता है जो, उसको कभी भी नहीं छोड़ना। क्यों बैर पाले किसी से भी हम, जीवन का आनंद है बैर बिना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। पुण्यों से ये नरभव मिला, व्यर्थ में इसको यूं ना गवा। सुख दुख है दोनों कर्मों के फल, क्यों हम करें किसी से गिला। के किसी का जो कारण बने, ऐसी कोई बात ना सोचना। क्यों बैर पाले किसी से भी हम, जीवन का आनंद है बैर बिना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही
हो भावना, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। चिंतन चिंतन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का मैं रचना मुकेश हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं? ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य हमें बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य? वो क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम ने दुखी होते हुए कहा। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कैसे टाल सकता था? शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध ना करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वो उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया हो और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वो उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी मैंने। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो है मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से हर क्षण प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूँ। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी तो 7 ही दिन बचे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 8वां दिन तो बना ही नहीं है। चिंतन जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। आज का ये प्रसंग हमें भेजा था कलकत्ते से श्रीमती रीना बर्मन जी ने। चिंतन
चिंतन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का मैं रचना मुकेश हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात। एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और घोषणा की कि इस सूत्र से ये द्वार खुल जाएगा और जो भी इस सूत्र को हल करके दरवाज़ा खोलेगा मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे हम इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें 2 तो दूसरे राज्य के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वो अपने साथ बहुत से पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तकें भी लेकर आए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा, कुछ भी साथ नहीं लाया था। उसने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दिया जाए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने में लग गए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाए और अपनी हार मान ली। अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा कि आप सूत्र हल करिए, समय शुरू हो चुका है। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर गया। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और ये क्या, दरवाज़ा खुल गया। राजा ने साधक से पूछा आपने ऐसा क्या किया? साधक ने बताया जब मैं ध्यान में बैठा तो सबसे पहले अंतर मन से आवाज़ आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। और मैंने वही किया। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम अपने विचारों में उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। हर समस्या का उचित इलाज आपकी आत्मा की आवाज़ है। उसको ज़रूर सुनिए। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। चिंतन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का मैं रचना मुकेश हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात। एक सज्जन जब 50 साल के हुए तो वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। उनकी पत्नी बहुत परेशान हुई। वो उनको एक काउंसलर के पास लेकर गई। उनको बताया कि ये भयंकर डिप्रेशन में है और इनके कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। काउंसलर ने उनकी पत्नी को बाहर बैठने के लिए कहा और काउंसलिंग शुरू करी। उन्होंने कुछ पर्सनल बातें भी पूछी उन सज्जन से। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी उन्होंने। तब काउंसलर ने कुछ क्षण सोचा और पूछा, आप 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। तो काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा। आप वहाँ से अपनी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर अपने साथियों के नाम देखिएगा और उन्हें ढूंढकर उनका हाल चाल जानने की कोशिश करिए। सारी जानकारी जो आपको मिले उसको आप डायरी में लिखिएगा और 1 महीने बाद मुझसे मिलिएगा। वो सज्जन स्कूल गए।
बहुत मिन्नतें कर उन्होंने रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। वो दिन रात कोशिश करते रहे, फिर भी बमुश्किल अपने 75 से 80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। पर आश्चर्य, उनमें से 20 लोग मर चुके थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो हैं कहाँ। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, और 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त, 1-2 लोग एक्सीडेंट्स में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे आवारा या निकम्मा निकले थे। एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, आप बताओ डिप्रेशन कैसा है? उन सज्जन को समझ में आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है। वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। उन्हें महसूस हुआ दुनिया में वाकई बहुत दुख है, और मैं तो बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। तो दोस्तों, दूसरों के सुख को देखकर अपने सुख को मत भूलिए। तुलनात्मक अध्ययन मत करिए, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। और फिर भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आइए। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने
कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। चिंतन चिंतन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का मैं रचना मुकेश हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। अचानक वो एक दुकान के सामने रुके और अपने मंत्री से बोले, पता नहीं क्यों लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। ये सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वो राजा से इसका कारण पूछते तब तक राजा आगे बढ़ गए। अगले दिन मंत्री एक आम नागरिक के वेश में दुकानदार से मिलने उनकी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन बेचता था। वो बहुत दुखी था और बोला कि ग्राहक मिलने मुश्किल हो रहे हैं। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं, चंदन को सूंघ कर चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की भी सराहना करते हैं, लेकिन वे खरीदते कुछ भी नहीं है। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन खरीदा जाए। वो उस क्षेत्र में एकमात्र चंदन का दुकानदार था, इसलिए उसे यकीन था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री को समझ में आया कि राजा उस दुकान के सामने क्यों रुक गए थे और क्यों उन्होंने दुकानदार को मारने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों का राजा पर प्रभाव पड़ा और बदले में राजा ने भी अपने अंदर दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार अनुभव किए। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर एक क्षण के लिए सोचा। फिर उन्होंने अपनी पहचान बताए बिना कुछ चंदन खरीदा और वापस महल की ओर आए। वो सीधे राजा के दरबार में गए और उनसे कहा कि चंदन के दुकानदार ने उनके लिए उपहार भेजा है। राजा हैरान रह गए जब उन्होंने सुनहरे चंदन और उसकी खुशबू को देखा तो बहुत खुश हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कुछ सोने के सिक्के चंदन के व्यापारी के पास भिजवाए। राजा अपने मन में ये सोचकर बहुत दुखी हुआ कि उसके मन में दुकानदार को मारने का विचार आया। उधर जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वो भी हैरान रह गया। वो राजा की प्रशंसा करने लगा, जिसने उसे गरीबी के अभिशाप से बचाने के लिए सोने के सिक्के भेजे।
कुछ समय बाद उसे अपने दूषित विचार याद आए जो राजा के प्रति उसने सोचे थे। उसे अपने निजी स्वार्थ पर बहुत पछतावा हुआ। यदि हम अन्य लोगों के प्रति अच्छे और दयापूर्वक विचार रखेंगे तो वे पॉजिटिव थॉट के रूप में हमारे पास लौट आएंगे। लेकिन हम अगर दूसरों के लिए निगेटिव सोचते हैं तो वे विचार हमारे पास उसी रूप में लौट कर आते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। चिंतन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का मैं रचना मुकेश हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात। सुबह कुछ जल्दी ही जाग गया। टक टक की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोलकर देखा, कोई नहीं दिखा। आवाज़ की दिशा में देखा, खिड़की पर दिखा एक पक्षी अपनी चोंच से खिड़की पर उकेर रहा था नक्काशी। मैंने पूछा, भाई क्या बात है? वो बोला, क्या किराए पे मिलेगा कोई पेड़ घोंसला बनाने के लिए? अकेला तो कहीं भी रह लेता, परंतु घर चाहिए चूजों के लिए। तुम्हारे ही भाइयों ने लूट लिया है, हमारा जंगल पूरा ही काट दिया है, बेघर तो कर ही दिया है, दाने पानी के लिए भी तरसा दिया है। पुण्य कमाने के लिए रख देते हैं छत पर थोड़ा दाना पानी, पर रहने के लिए छत भी तो चाहिए। ये तो कोई सोचता भी नहीं। पेट तो भरना ही है, भीख ही सही, थोड़ा खा भी लेते हैं, थोड़ा घर भी ले, भले ही सर पर छत ना हो, पेट में भूख तो है ना। कभी कभी सोचता हूँ आत्मघात कर लूं, बिजली के तारों पर बैठ जाऊं, या पटक दूं सर मोबाइल के ऊंचे। जैसे सरकार दे देती है कुछ फांसी लगाने वाले किसान को, वैसे ही मिल जाएगा कोई पेड़ मेरे चूजों के घोंसलों के लिए। सुनकर मैं सुन्न हो गया। इतना कुछ तो सोचा ना था। जंगल काटकर घर उजाड़ दिया, इन विचारों का विचार नहीं किया। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, सबकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आत्मघात का विचार त्याग दो, ये दिल से निवेदन है मेरा। अभी तो इस गमले के पौधे पर अपना वन रूम किचन का घर बसा लो। थोड़ी अड़चन तो होगी, परंतु अभी इसी से काम चला लो। उसने कहा, बड़ा उपकार होगा, परंतु किराया क्या होगा और मैं कैसे चुकाऊंगा? मैंने कहा, तीनों पहर मंगल कलरव सुनूंगा और कुछ नहीं। वो बोला, मुझे तो आप मिल गए, पर मेरे भाई बंधुओं का क्या होगा? उन्हें भी तो घर चाहिए, कहाँ रहेंगे वे सब? मैंने कहा, अरे अब लोग जाग रहे हैं, बड़, पीपल, नीम, गूलर रोप रहे हैं। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। किसी को आत्मघात करने की आवश्यकता अब नहीं है। सुनकर पक्षी उड़ गया घोंसले का सामान लाने के लिए, और मैंने अपना माइक उठाया आपको बताने के लिए। पक्षी की टकटक से मेरे मन का दरवाज़ा खुल गया है। आपके मन का भी खुल गया है ना? पक्षी की परेशानी पर चिंतन ज़रूर करिएगा। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।
और नीयत साफ हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से। काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से। काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेद भाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है
का आस हो।